Hello students, we were discussing about continuity, which is chapter number 6th, and exercise 6.1 was going on. So many questions we have discussed already, and the last few questions are remaining. And in all questions we have same logic, that we have to check continuity. That means we have to find out value of a function at that point, and left hand limit and right hand limit. If all three are equal, then we can say function is continuous. Otherwise function is discontinuous at that particular point. Okay students, so now 3-4 more questions are remaining in this exercise. We have to discuss them. Now question number 21, test continuity of function at x equal to 3 where fx is equal to mod of x minus 3 upon x into x minus 3, and this definition of function works when x is not equal to 3, and when x equal to 3 definition is changed to 0. Means we have to use this function for LHL and RHL, but x equal to 3. When x is equal to 3, then we have to use simply value of function is equal to 0. So students, in this question mod is introduced, and when modulus function is introduced, I told you many times that first we have to remove mod from the function. So what is the procedure to remove mod? We have to find out critical points. So just put equal to 0 what is written inside the mod. जो भी mod के अंदर लिखा होता है उसको equal to 0 करेंगे. So यहाँ से x की वैल्यू कितनी आएगी? 3 आ रही. अब एक क्रिटिकल पॉइंट से दो रीजन बनते हैं. जैसे 3 आया हमारा क्रिटिकल पॉइंट, तो 3 से कम वाला रीजन और 3 से ज्यादा वाला रीजन. तो मैं दोनों रीजन बना देता हूं, x लेस देन 3 और x ग्रेटर देन 3. ओके स्टूडेंट्स, अब ध्यान से समझिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है. मोड को कैसे रिमूव किया जाता है, हाउ टू ब्रेक मोड. सो सबसे पहले x लेस देन 3 वाला केस करते हैं. अब तुम्हें कुछ नहीं करना होता, x लेस देन 3 से एक छोटा नंबर सोचो. बिल्कुल सोचा, 2 सोचा. 2 को मोड के अंदर रखो. मोड के अंदर रखा, 2 माइनस 3. प्लस का आया या माइनस का आया? माइनस का आया. लेकिन मोड मर जाएगा, माइनस का नहीं होगा. यही तो रूल सीखा है हमने मोड के लिए. मोड इज ए पॉजिटिव क्वांटिटी, मोड मर जाएगा लेकिन माइनस का नहीं होगा. तो यहां पे हमने लेस देन 3 के लिए सोल्व कर रहे हैं, तो लेस देन 3 से एक नंबर सोचा. नंबर जैसे हमने 2 सोचा, 2 यहां पे रखा, 2 माइनस 3. पॉजिटिव या नेगेटिव? नेगेटिव आया. इसको पॉजिटिव बनाने के लिए मोड हटाएंगे और एक नेगेटिव और लगा देंगे. ये प्रोसीजर है. इससे क्या हुआ सर? देखो x माइनस 3 नेगेटिव आ रहा है, इसके ऊपर मोड था. अब ये नेगेटिव से फिर मल्टीप्लाई होगा, ओवरऑल क्या बन गया? पॉजिटिव. इसीलिए तो मैंने कहा था मोड मर जाएगा, माइनस का नहीं होगा. x माइनस 3 से x माइनस 3 कैंसिल हो गया. अब आगे चलिए, x ग्रेटर देन 3. 3 से बड़ा कोई नंबर सोचिए. 4 सोचा, 4 माइनस 3 1 आ गया, पॉजिटिव है. मोड की जरूरत नहीं है, जबरदस्ती लिखा हुआ है x माइनस 3 अपॉन x इंटू एक्स माइनस 3. ये कैंसिल हो जाएगा, ये 1 अपॉन x आ गया. और x इक्वल टू 3 पे डेफिनेशन उसने खुद ने बताई है 0. मतलब वो जो ऐसे उसने fx दे रखा था वो कुछ नहीं, सिंपल है. x लेस देन 3 के लिए तो माइनस 1 अपॉन x यूज करना है, x ग्रेटर देन 3 के लिए 1 अपॉन x यूज करना है, और x इक्वल टू 3 के लिए 0 यूज करना है. मैं एक बार वापस से लिख देता हूं ताकि कंफ्यूजन ना रहे. fx इज माइनस 1 बाई एक्स वेन x लेस देन 3, 1 बाई एक्स वेन x ग्रेटर देन 3, और 0 वेन x इक्वल टू 3. ओके स्टूडेंट्स, तो ये डेफिनेशन अब हमें यूज करनी है. अब हमें इसकी क्या बतानी है? कॉन्टिन्यूटी को चेक करना है. तो बड़ा आसान है. किस पॉइंट पे? एट x इक्वल टू 3. तो सबसे पहले वी विल कैलकुलेट f3, और जो कि गिवन है 0. Thereafter we will calculate left hand limit and right hand limit. If they both will also come equal to 0, then we say function is continuous, otherwise discontinuous at x equal to 3. So first of all we are going to find out left hand limit, which is limit x tends to a minus. Or what is a? A is the point where we have to discuss the continuity. So here a is 3. So 3 minus, and function will be, for LHL function will be minus 1 upon x. So limit h tends to 0 minus 1 upon 3 minus h. Here we can put the value of h which is equal to 0. So we will get minus 1 by 3. So students, these both quantities are not equal. Therefore what we can say,
we can say that FA is not equal to LHL, therefore function is discontinuous. सर आपने RHL फाइंड आउट नहीं किया, अगर RHL देखो RHL 0 आ गया तो भी 1/3 के इक्वल नहीं हो सकता, और RHL -1/3 आ गया तो भी वो 0, मतलब तीनों इक्वल नहीं हो सकते. तो सिंपली वी कैन से फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 3. Now we will move to question number 22. So students, now question number 22. Examine the continuity of function fx is equal to 2x minus mod x at x equal to 0. So अब देखिए ये फंक्शन जो है इसके अंदर मोड आ रहा है, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, मोड को हटाते हैं. तो मोड को हटाने का तरीका, जो मोड के अंदर लिखा हुआ है उसको इक्वल टू 0 करेंगे. तो यहाँ पे तो x की वैल्यू भी 0 आ गई, मतलब ये x इक्वल टू 0 इसका क्रिटिकल पॉइंट है जहाँ पे मोड का नेचर चेंज होगा. तो 0 से 2 रीजन बनते हैं, जब एक क्रिटिकल पॉइंट आता है तो 2 रीजन बनते हैं, 2 आए होते तो 3 रीजन बने होते. तो x इक्वल टू 0 एक क्रिटिकल पॉइंट है, तो ऑब्वियस सी बात है एक तो 0 से कम वाला और एक 0 से ज़्यादा वाला. क्लियर है स्टूडेंट्स. अब देखिए हमें क्या करना होता है, ये मोड जो है इसको हटाते हैं तो 2 ही काम होते हैं, या तो इसके आगे पॉजिटिव साइन आता है या नेगेटिव आता है. और उसको पता लगाने का तरीका, 0 से कम नंबर सोचो, जैसे -1 सोचा तो जो मोड के अंदर लिखा हुआ है वहां पुट करो उसको -1. अब मोड के अंदर क्या आ रहा है, -1, मतलब नेगेटिव का आ रहा है. तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस मोड को हटाएंगे तो पहले नेगेटिव से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ताकि ये ओवरऑल पॉजिटिव हो जाए. तो स्टूडेंट्स h लेस देन 0 के लिए क्या हो जाएगा, 2x माइनस, इस मोड को हटाने के लिए x मोड ऑफ x को माइनस ऑफ x से मल्टीप्लाई करना पड़ा. क्लियर है स्टूडेंट्स. तो ये सिंपली ऐसा बन जाएगा 2x प्लस x विच कैन बी रिटन एज 3x. ये बात समझ में आई या नहीं आई, बिल्कुल आई होगी. अब देखिए दोबारा समझिए, x ग्रेटर देन 0, x से 0 से बड़ा है, कोई नंबर सोचो, 1 सोचा, मोड के अंदर 1 रखा तो मोड की जरूरत थी नहीं सर, वो तो 1 ही रहेगा. तो सिंपली मोड को हटा देंगे, क्या हो जाएगा 2x माइनस x विच कैन बी सिंपली रिटन एज x. और सर व्हेन x इक्वल टू 0, इन दिस केस, मतलब जब ऐसे डेफिनेशंस होती है, जब तुम मोड को खुद ब्रेक करते हो तो उसमें तुम किसी भी केस पे, या तो इस पे या इस पे, किसी भी पे भी इक्वल टू का साइन लगा सकते हो एक पे, और तुम चेक भी कर सकते हो. देखो मान लो जिसमें ऐसी, इसमें x इक्वल टू 0 माना तो यहाँ 0 रखो, सेम आ रहा है रिजल्ट, और यहाँ रखो तो भी रिजल्ट क्या आ रहा है, सेम आ रहा है, 0 ही आएगा. x को किसी में भी रखो. तो ये fx की डेफिनेशन हो गई. अब हमें इसकी कॉन्टिन्यूटी डिस्कस करनी है x इक्वल टू 0. तो सबसे पहले तो 0 पे क्या आ रहा है, 0 आ रहा है. फिर हम बात करेंगे LHL की. LHL में क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस, दैट इज 3x. सो लिमिट h टेंड्स टू 0, 3 इंटू 0 माइनस h, दैट विल बी ऑल्सो 0. जब h की वैल्यू पुट करोगे तुम 0, तो 3 इंटू 0 माइनस 0 क्या आ जाएगा, 0. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट RHL विच इज लिमिट h tends to 0 plus fx will be x. So here we can say limit h tends to 0, h can be replaced by 0 plus h. So here also by substituting the value of h we will get 0. Therefore all three are equal. So I can say LHL is equal to FA is equal to RHL, where LHL क्या होता है, limit h tends to 0 minus fx. LHL के लिए fx जो था वो 3x इज इक्वल टू FA जो था वो F0, और जो RHL है वो है लिमिट h टेंड्स टू 0 प्लस x. ये तीनों इक्वल आए, देयरफॉर फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस. और हमेशा नहीं, मुझे तो सिर्फ इतना पता है, कॉन्टिन्यूस एट x इक्वल टू 0. क्लियर है स्टूडेंट्स. इस तरीके से हमें क्वेश्चन करना है जो बिल्कुल सही है. नाउ वी विल मूव टू क्वेश्चन नंबर 23. स्टूडेंट्स नाउ वी विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 23, जिसमें कह रहा है एग्जामिन द कॉन्टिन्यूटी ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू मोड ऑफ एक्स माइनस बी एट एक्स इक्वल टू बी. सो स्टूडेंट्स फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू रिमूव द मॉडुलस फंक्शन. सो मॉडुलस फंक्शन के लिए हम क्या करते हैं, क्रिटिकल पॉइंट. और क्रिटिकल पॉइंट कैसे निकाला जाता है, जो मोड के अंदर लिखा होता है उसको इक्वल टू 0 करते हैं. तो यहाँ से एक्स की जो वैल्यू आएगी दैट इज द क्रिटिकल पॉइंट बी. अब एक ही क्रिटिकल पॉइंट है तो 2 रीजन बनेंगे, एक इससे कम के लिए और एक इससे ज़्यादा के लिए. सो एक्स लेस देन बी एंड एक्स ग्रेटर देन बी. इक्वल टू किसी भी केस पे लगा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता. अब लेस देन बी, अब एक्स की वैल्यू बी से कम, अगर ये मैं बी से कम रखूंगा तो मोड के अंदर बनने वाली क्वांटिटी नेगेटिव होगी या पॉजिटिव होगी.
ऑब्वियस सी बात है नेगेटिव होगी। तो जब नेगेटिव आता है मोड, तो मोड को हटाने का तरीका है माइनस से मल्टीप्लाई कर दो। और जब b से बड़ा रखूं, जैसे मान लो b की वैल्यू 3 है और इसको बड़ा रखूंगा b से, तो ये पॉजिटिव आ रहा है, तो मतलब मोड की जरूरत नहीं थी। जैसे मोड ऑफ 2 जरूरत ही नहीं है मोड की, और जैसे माइनस ऑफ 2 के ऊपर मोड है, तो अब मोड हटता है तो 2 बन जाता है ना, तो 2 कैसे बनता है, इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दो। क्लियर है स्टूडेंट्स? इस तरीके से तो ये मोड की जरूरत है नहीं, x माइनस बी हो जाएगा सिंपली। मतलब वो जो फंक्शन इस तरीके से दिया हुआ था उसका हमने सबसे पहले क्या किया, मोड हटाया और इस तरीके से बनाया। आगे अब कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। हमें फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है एट x इक्वल टू बी यहाँ पर। तो सबसे पहले एफ बी बताओ, एफ बी कितना आ रहा है, यहाँ बी रख दो, बी माइनस बी दैट इज 0। स्टूडेंट्स अगर तुमने यहाँ भी इक्वल टू लगाया होता, यहाँ भी रखा होता, बी माइनस 0, 0 ही है वो भी है ना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए मैं कह रहा था इक्वल टू कहीं भी लगा दो। तो उस पॉइंट पे कैलकुलेट हो गया। उसके बाद वी विल कैलकुलेट आवर लेफ्ट हैंड लिमिट दैट इज LHL। क्या होती है, लिमिट x टेंड्स टू b माइनस, अब b पे चेक कर रहे हैं तो b माइनस, RHL होती तो b प्लस, है ना। तो लिमिट x टेंड्स टू b माइनस fx। LHL के लिए fx क्या है, माइनस x प्लस b। नाउ वी कैन write limit h tends to 0, replace x by b minus h plus b. So students, it will be minus b plus h minus b plus h plus b. Okay, so simply b and b will cancel and value of h is equal to 0. So LHL will be equal to 0. Now we will solve our right hand limit, which is equal to limit x tends to b plus, and what is the function we have to use, that is simply x minus b. Now we can replace x by b plus h minus b, and b will cancel out, so value of h will be 0, so this is also equal to 0. Now we can say function value at point b, left hand limit is equal to 0 and right hand limit which is also equal to 0. So therefore all three are equal. So I can say LHL is equal to FA is equal to RHL. And what is LHL? LHL as limit x tends to b minus, b से कम के लिए, और फंक्शन क्या था यहाँ पर था माइनस ऑफ x माइनस बी इज इक्वल टू FA दैट इज FB, और RHL दैट इज लिमिट x टेंड्स टू b प्लस, एंड फंक्शन क्या था x माइनस बी। ये तीनों इक्वल है, देयरफॉर मैं कह सकता हूं फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू b। इस तरीके से स्टूडेंट्स हमें ये पूरा सॉल्यूशन करना पड़ेगा, तब जाकर हमें कंप्लीट 4 मार्क्स इस क्वेश्चन के मिलेंगे। क्लियर है स्टूडेंट्स? नाउ वी विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 24. सो स्टूडेंट्स, नाउ आई हैव रिटन क्वेश्चन नंबर 24. So this is a very good question. Listen carefully. Show that the function fx is equal to x upon mod x plus 2x square when x is not equal to 0, and k when x is equal to 0. K when x is equal to 0 remains discontinuous at x equal to 0 regardless of the choice of k. कह रहा है कि k की वैल्यू से कोई फर्क ही नहीं पड़ता, ये तो डिसकॉन्टिन्यूस ही रहता है। तो ऐसा हमें शो करना है कि ये डिसकॉन्टिन्यूस ही रहेगा चाहे के की वैल्यू कुछ भी हो जाए। तो स्टूडेंट्स ऐसा क्यों हो सकता है? देखो 0 पर वैल्यू आ रही है के, और क्या बचा LHL और RHL। अब LHL और RHL दोनों अलग आ गए, तो उस पे 0 पे मान लो वैल्यू के आ रही है तो उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। मान लो 0 पे 1 आ रही है लेकिन LHL पे 2 आ गई, RHL पे 3 आ गई, तो इससे फर्क ही नहीं पड़ रहा ना। जैसे मान लो ये LHL पे 1 आया होता, RHL पे 1 आया होता, तो हम बोलते कि 0 पर के की वैल्यू 1 होनी चाहिए, तो कंटिन्यूस हो जाता। लेकिन अब LHL और RHL ये अलग आ रहे हैं, तो उस पॉइंट पे मान लो हम कुछ भी मानेंगे, लेकिन तीनों तो इक्वल नहीं हुए, इस वजह से तो हमें ये शो करना है। तो स्टूडेंट्स लेकिन उससे पहले जो फंक्शन है fx, उसमें मोड इंट्रोड्यूस हुआ। जैसे ही मोड इंट्रोड्यूस हुआ क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे। क्रिटिकल पॉइंट निकालने का तरीका, जो मोड के अंदर लिखा है उसको इक्वल टू 0 करो और वहां से x की वैल्यू निकालो। तो अब यहाँ पे तो मोड के अंदर सिर्फ एक ही बात लिखी हुई है, सिंपल x, बोलो सिंपली x ही लिखा हुआ है। तो हम जैसे इसमें क्रिटिकल पॉइंट कैलकुलेट करेंगे, और क्रिटिकल पॉइंट मोड के अंदर x रखा हुआ है, x की वैल्यू को क्या करेंगे 0 के इक्वल करेंगे। सो 0 क्या आ गया, क्रिटिकल पॉइंट आ गया। जो x की वैल्यू होती है ना वो क्रिटिकल पॉइंट होता है। जैसे मोड के अंदर x-1 लिखा हो
तो अब x माइनस वन को जीरो करेंगे, फिर x की वैल्यू वन। अब ये क्रिटिकल पॉइंट है x इक्वल टू वन। अब यहाँ पर तो इत्तिफाक से ऐसा हो रहा है कि मोड के अंदर है ही x, तो उसको जीरो के इक्वल किया और x की वैल्यू जीरो आ गई। अब जीरो भी दो रीजन बना देगा, एक तो व्हेन x लेस देन जीरो और एक व्हेन x ग्रेटर देन जीरो। स्टूडेंट्स इसमें इक्वल टू मत लगाना, क्योंकि उसने अलग से दे रखा है व्हेन x इक्वल टू जीरो, तो क्या वैल्यू गिवन है, के गिवन है। अब ध्यान से समझिए, व्हेन x लेस देन जीरो, इसका मतलब क्या है, x जीरो से छोटा है। एक नंबर सोचिए जो जीरो से कम है, माइनस वन इस मोड वाली पूरी क्वांटिटी के अंदर रखिए और सोल्व करिए। अब यहाँ पे तो सिंपली x से तो सोल्व क्या करोगे, माइनस वन आ जाएगा। अब माइनस वन जो मोड के अंदर जो आ रहा है, ये बताओ वो नेगेटिव है या पॉजिटिव है, नेगेटिव है। तो मोड हटाने का तरीका क्या होता है, एक नेगेटिव साइन उसके आगे लगा दो, तो क्या हो जाएगा, x अपॉन माइनस एक्स प्लस 2x स्क्वायर। क्लियर है। जैसे ग्रेटर देन जीरो, वन सोचो, वन रखो, पॉजिटिव आ रहा है, मोड की जरूरत ही नहीं थी, तो इस रीजन के लिए तो पॉजिटिव होगा, इस रीजन के लिए क्या होगा, नेगेटिव। सो x अपॉन एक्स प्लस 2x स्क्वायर। इस तरह का क्वेश्चन बन जाएगा। तो fx की वैल्यू ये आ रही, थोड़ा इसको और सिंप्लीफाई करते हैं, तो मैं कहूँगा fx की जो वैल्यू है वो इस तरीके की आ जाएगी। अब डिनोमिनेटर में से x कॉमन आ रहा है, तो कॉमन ले सकते हो, कैंसिल करो, क्या बच जाएगा, वन अपॉन x कॉमन लिया हमने, कैंसिल कर दिया, तो माइनस वन प्लस 2x व्हेन x इज लेस देन जीरो। क्लियर है स्टूडेंट्स, इतना सोल्व किया। अब उसके बाद यहाँ भी x कॉमन आ रहा है, x कॉमन लो, तो x कॉमन लोगे तो न्यूमरेटर के h से कैंसिल हो जाएगा, सो वन, और यहाँ क्या बचेगा, वन प्लस 2x। ये है डेफिनेशन व्हेन x इज ग्रेटर देन जीरो। और तीसरी बात उसने सिंपली बोल रखा है x इक्वल टू जीरो के लिए क्या आ रहा है, k आ रहा है। ठीक है। अब हमें मतलब इस क्वेश्चन को नहीं, इस क्वेश्चन को सोल्व करना है, और हमें क्या बताना है कि ये फंक्शन हमेशा डिसकंटिन्यूअस रहता है, के पे डिपेंड नहीं करता, के की वैल्यू कुछ भी रख दो। तो इसका मतलब ये होगा ये दोनों ही नॉट इक्वल आ जाएंगे। तो स्टूडेंट्स अपना वही प्रोसीजर, f0 तो क्या आ रहा है, के आ रहा है। उसके बाद हम क्या करेंगे, LHL किया। LHL क्या होता है बताओ सिंपली, LHL होता है लिमिट x टेंड्स टू जीरो से कम के लिए चेक करना है, तो जीरो माइनस दैट इज वन अपॉन माइनस वन प्लस 2x। अब स्टूडेंट्स हम अगले स्टेप में क्या करेंगे, लिमिट h टेंड्स टू जीरो कर देंगे। तो h टेंड्स टू जीरो करने का मतलब क्या है, वन अपॉन माइनस वन प्लस 2 इंटू जीरो माइनस h। सो स्टूडेंट्स ध्यान से देखिए, इसको सोल्व करोगे तो ये क्या हो जाएगा, मैं h की वैल्यू पुट कर रहा हूँ, वन अपॉन माइनस वन प्लस जीरो, सो देयर इट विल बी माइनस वन। अगर अब LHL की वैल्यू माइनस वन आई है, अगर RHL की भी वैल्यू माइनस वन आ गई, तो मैं क्या बोल दूंगा कि भाई दोनों माइनस वन है, तो k की वैल्यू माइनस वन होनी चाहिए। अब तो a की कंडीशन पे ये क्वेश्चन हो सकता है जब कह रहा है शो दैट फंक्शन रिमेन्स डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू जीरो रिगार्डलेस ऑफ द चॉइस के, कि जो RHL है उसकी वैल्यू ही कुछ और आ जाए। जैसे RHL की वैल्यू सपोज करिए वन आ गई, तो RHL वन, LHL माइनस वन, तो अब k कुछ भी रख दो ना, तो फंक्शन कंटिन्यूअस हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो दोनों ही पहले अलग हो गए। समझे बात को। तो RHL और कैलकुलेट करते हैं, कहीं ऐसा ना हो माइनस वन ही आ जाए RHL। सो लिमिट h टेंड्स टू जीरो प्लस RHL। सो जीरो प्लस के लिए जब चेक करने जा रहे हो तो फंक्शन क्या है बताओ, वन अपॉन वन प्लस 2x पुट करो, लिमिट h टेंड्स टू जीरो, तो ये हो जाएगा वन अपॉन वन प्लस 2 इंटू जीरो प्लस h की वैल्यू पुट कर दो, वन अपॉन वन दैट इज इक्वल टू वन। सो स्टूडेंट्स LHL और RHL इक्वल नहीं है, तो k की वैल्यू कुछ भी हो, ये फंक्शन क्या रहेगा, डिसकंटिन्यूअस रहेगा। LHL इज नॉट इक्वल टू RHL, देयरफॉर फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू जीरो रिगार्डलेस ऑफ द चॉइस ऑफ k, ऑफ द चॉइस ऑफ k। इसीलिए मैंने कहा था तुमसे ये एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, लेकिन अब तुम इसको इजीली कर पाओगे। और मेरी इस बात का भी ध्यान रखो, जिन फंक्शंस में मॉड्यूलस फंक्शन को इंट्रोड्यूस किया जाता है उनमें सबसे पहले मॉड्यूलस फंक्शन को ही रिमूव किया जाता है, और उसका मेथड मैंने तुम्हें कई बार एक्सप्लेन किया है। क्लियर है स्टूडेंट्स। नाउ वी विल डू लास्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 20। So students, now I have written question number 25 in which saying that discuss the continuity of fx is equal to mod of x minus 1 plus mod of x minus 2 at x equal to 1 and x equal to 2। So students इसमें एक नई चीज़ तो ये है कि दो मोड को इंट्रोड्यूस किया गया है एक क्वेश्चन के अंदर,
और 2 पॉइंट के ऊपर कॉन्टिन्यूटी की बात कर रहा है। चलिए तो डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन को। स्टूडेंट्स ये बात तुम्हें क्लियर होनी चाहिए कि जब भी फंक्शन के अंदर मोड आएगा सबसे पहले मोड को रिमूव करेंगे। 2 मोड आ गए तो कोई बात नहीं, 2 मोड को रिमूव करेंगे। मोड को रिमूव करने का एक आसान सा तरीका है, सबसे पहले मोड के अंदर जो लिखा है उसको इक्वल टू 0 करो। सो जो वैल्यू आएगी दैट इज क्रिटिकल पॉइंट, एक्स की जो वैल्यू आएगी। इसी तरह हमें दूसरा मोड था उसको भी 0 करना पड़ेगा, तो वहां से एक्स की वैल्यू कितनी आ रही 2। सो अब 2 क्रिटिकल पॉइंट आए हैं 1 और 2, तो ऑब्वियस सी बात है कि रीजन जो बनेंगे वो 3 बनेंगे। कैसे? जैसे 1 से 2, 1 और 2 आया ना, तो एक तो 1 से कम वाला मतलब x लेस देन 1, फिर एक ऐसा x जो 1 से 2 के बीच में है, और एक ऐसा x व्हेन x ग्रेटर देन 2। ये 3 रीजन बन, जैसे 3 क्रिटिकल पॉइंट आते हैं तो 4 रीजन बनते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो x लेस देन 1 के लिए अब चेक करेंगे। अब इस मोड को हटाना है, किसके लिए? x लेस देन 1 के लिए। हटाने का बड़ा आसान तरीका है, x लेस देन 1 कोई नंबर सोचो, सोच लिया 0 इसमें पुट करो। जिस मोड में वैल्यू पुट करने पे नेगेटिव आएगा उसके आगे एक नेगेटिव और लगा दो, मोड हटा दो। जिसमें पॉजिटिव आए उसमें सिंपली मोड हटा दो। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो x लेस देन 1 के लिए मैंने 0 पुट किया, तो 0 - 1 इस मोड में नेगेटिव आ रहा है, 0 - 2 इस मोड में भी नेगेटिव आ रहा है। तो दोनों मोड कैसे ओपन होंगे? माइनस ऑफ x - 1 माइनस ऑफ x - 2। ये समझने की बात है, ध्यान से समझो इस बात को। उसके बाद अब हम इस पे आते हैं 1 से 2 के बीच में कोई नंबर सोचो 1.5 इसमें रखोगे तो पॉजिटिव आएगा, इसमें आएगा नेगेटिव। तो जिसमें पॉजिटिव आता है तो उसमें तो सिंपली मोड हट जाता है बस, और जिसमें नेगेटिव आता है उसमें नेगेटिव से मल्टीप्लाई और करना होता है। जैसे अब हमें x ग्रेटर देन 2 कोई नंबर सोचो, जैसे मैंने 3 सोचा, 3 रखो पॉजिटिव आएगा, 3 रखो पॉजिटिव आएगा, दोनों पॉजिटिव आ रहे हैं, मोड की जरूरत ही नहीं थी। x - 1 प्लस x - 2। इस तरीके से हमें फंक्शन को मॉडुलस फंक्शन को ऐसे रिमूव किया जाता है। अब इस फंक्शन को सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये जो फंक्शन है f(x) ये कुछ ऐसा बन जाएगा, ध्यान से देखो, जैसे -x - 2x प्लस 3 हो जाएगा व्हेन x इज लेस देन 1। ये डेफिनेशन कब काम में आएगी? जब x की वैल्यू 1 से कम है। स्टूडेंट्स यहाँ पे सोल्व करो, x और x कैंसिल हो जाएगा, -1 + 2 विल बी 1, और ये डेफिनेशन कब काम में आएगी? व्हेन x इज बिटवीन 1 and 2, और when x greater than 2 it will be 2x - 3 when x is greater than 2। स्टूडेंट्स एक चीज और क्लियर कर दूं, जैसे यहाँ 1 की डेफिनेशन यहाँ भी आ रही है, यहाँ भी आ रही है, तो एक जगह इक्वल टू लगाना होता है, कहीं भी लगा लो कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे 2 की डेफिनेशन 2 जगह आ रही है, एक जगह इक्वल टू लगाना है, कहीं पे भी लगा लो। क्लियर है? तो हमें इस फंक्शन को इस फंक्शन की जो कंटिन्यूटी पे बात करनी थी, वो अब हमें इस फंक्शन की कंटिन्यूटी के लिए बात करनी है। तो 1 बाई 1 करते हैं, 2 पॉइंट पे करनी है, पहले 1 पर और फिर 2 पर। तो पहले 1 पे चेक करते हैं। सो मैं कहूँगा एट x = 1 मैं चेक करने जा रहा हूँ। सो सबसे पहले मुझे बताओ f1 क्या आया? f1 1 पुट करो इस फंक्शन के अंदर, सो क्या हो जाएगा बताओ? अच्छा 1 पे मैंने यहाँ इक्वल टू लगाया तो कितना आ रहा है? सिंपली 1 आ रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अच्छा स्टूडेंट्स यहाँ से देखो क्लियर भी कर लो, मैंने कहा था ना इक्वल टू कहीं भी लगा लो। अगर तुमने यहाँ इक्वल टू लगाया होता तो 1 इसके अंदर पुट किया होता, और -2 + 3 1 ही आया होता। तो क्लियर है? और अब भी यहाँ पे इक्वल टू लगाने से भी वैल्यू 1 ही आ रही है। तो ये तो हो गया हमारा f1। उसके बाद हम LHL कैलकुलेट करते हैं, दैट इज लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होती है? लिमिट x टेंड्स टू 1 - अब 1 से कम के लिए ये फंक्शन काम में आएगा, दैट इज -2x + 3। सो ये हो जाएगा स्टूडेंट्स लिमिट h टेंड्स टू 0 और -x को रिप्लेस करेंगे 1 - h से +3। तो ये सिंपली देखो 1 आ जाएगा। जैसे f1 कैलकुलेट किया, LHL कैलकुलेट किया, उसी तरह हम RHL भी कैलकुलेट करेंगे। RHL क्या हो जाएगा? लिमिट x टेंड्स टू 1+ और फंक्शन 1+ के लिए अब ये वाला हो जाएगा। 1+ किस में आ रहा है बताओ? 1 + h क्या होता है? 1 से थोड़ा सा ज्यादा, तो 1 से 2 के बीच में ही आ रहा है, तो दैट इज 1 इंडिपेंडेंट ऑफ h। तो लिमिट डायरेक्ट पुट हो रही, क्या आ गया? 1 आ गया। अब यहाँ से देख सकते हो तीनों इक्वल आए हैं, तो हम क्या कहेंगे? दिस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट x = 1। अभी क्वेश्चन आधा ही हुआ है, क्यों? क्योंकि हमें एट x = 2 पे और बताना है फंक्शन का नेचर कैसा है। तो कोई दिक्कत नहीं है, वापिस वही f2 बताओ सबसे पहले। अब 2 पे इक्वल टू यहाँ था तो कितना आ रहा है? 1 आ रहा है। अब आ जाओ LHL पे। सर आप LHL दोबारा क्यों कैलकुलेट कर रहे हो? आपने यहाँ की तो थी LHL। बेटा ये LHL जो थी वो 1- और ये RHL 1+ के लिए थी। अब हमें किसके लिए करनी है? 2 पे चेक कर रहे हैं, तो LHL क्या होगी? लिमिट x टेंड्स टू 2-। तो fx क्या आएगा बताओ?
2 माइनस 2 से कम के लिए, ये 2 से ज़्यादा के लिए, ये 2 और 1 के बीच में, तो 2 माइनस एच जस्ट इसी में आएगा, तो क्या हो जाएगी 1। और ये तो इंडिपेंडेंट है किससे, एच से, तो लिमिट पुट कर दो, सिंपली क्या आ गया 1। अब इसी तरह आर एच एल और फाइंड आउट करने जा रहे हैं। आर एच एल क्या होती है, लिमिट एच टेंस टू 2 प्लस और एफ एच 2 से ज़्यादा के लिए दैट इज 2x माइनस 3। तो स्टूडेंट्स लिमिट h टेंस टू 0, रिप्लेस h बाय 2 प्लस h, सो ये क्या हो जाएगी 4 प्लस 2h माइनस 3, तो वैल्यू पुट कर दो h की 0, दैट विल बी 4 माइनस 3 दैट इज इक्वल टू 1। सो ये भी F2 LHL और RHL क्या आया, तीनों इक्वल आए 1 के। सो स्टूडेंट्स इन दिस क्वेश्चन वी कैन से दैट कॉन्टिन्यूअस एट बोथ द पॉइंट्स दैट इज h इक्वल टू 1 और h इक्वल टू 2। वैसे भी जब मॉड्यूलस फंक्शन पे ऐसे सम लिखा होता है ना, तो जनरली कॉन्टिन्यूअस ही होता है, क्योंकि मॉड्यूलस फंक्शन इज ए कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। तुमने इसका ग्राफ भी देखा होगा, तो y इक्वल टू मोड x का जो होता है इस तरह का होता है, तो ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, कहीं भी ब्रेक नहीं हो रहा है। सो स्टूडेंट्स दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, एंड इन दिस क्वेश्चन one thing was different, that is here two modulus function were introduced in a single function. Okay, so now you can do it. And students, now we have completed our exercise 6.1, and this exercise was based on continuity of a function at a point, किसी पॉइंट पे continuity की बात कर रहा था। In next lecture we will discuss some questions of continuity on a interval, means in those questions continuity will be discussed on a interval. So thank you students. So hope this all is clear to you. Thank you.